Hey guys, how are you all? Myself Nidhi Singhal and I welcome you all once again to my YouTube channel. Kids, I know exams are near and you all have to cover lots of syllabus, and keeping this in mind, I am uploading my new video which is the continuation of chapter light. So if you still have not gone through my first video of light which was of class 6, go through it so that you can have better understanding of this chapter. In this video I will take chapter light which is from class 7th. Now let's have a look what we are going to learn in this video. So we will start with the revision about light that we have covered in our previous video which was of class 6. Then we will move to the types of images, that is real image and the virtual image. Then we will learn about the image formation by a plane mirror and its characteristics. Then we will learn about the spherical mirrors, that is concave mirror and the convex mirror. Now without wasting any time, let's have a look what we have done in our previous video. So we have learned so far that light is a form of energy which enables us to see the objects around us, and apart from light we also need eyes to see the things. Okay, then we have learned about the phenomena which we called as the rectilinear propagation of light, which states that light travels in a straight line only, and for this activity, to prove this activity, we have conducted a very interesting experiment of a straight hollow pipe and a bent hollow pipe. मेरे को लगता है आप लोगों को याद होगा कि हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था. याद है ना? ओके, नहीं याद है तो आप पहले वाले वीडियोस देखें और फिर उसमें से आप उसको गो थ्रू करें. देन वी हैव लर्नड अबाउट द रिफ्लेक्शन. what is reflection? It is the process of change in direction of light by a mirror. बच्चों, हमने पढ़ा था जब भी लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, नॉन ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, और इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वी कॉल इट एज द रिफ्लेक्शन. सो what we have learned so far about reflection is that the change in the direction of light by a mirror, it is the reflection of light, or we can say that the process of sending back the rays of light which fall on the object is called as the reflection of light. Kids, after reflection also the light it continues to travel in a स्ट्रेट लाइन ओनली. वैसा नहीं है कि वो टकराकर आ गई, बाउंस बैक हो गई तो वो उसकी मर्जी है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी. इट इज नॉट लाइक दैट. इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. Now let's have a look what do you mean by incident ray and the reflected ray. तो बच्चों, जो कोई भी रे आकर प्लेन मिरर या ऑब्जेक्ट से टकराती है वो हमारी होती है इंसिडेंट रे, एंड द रे that bounces back, it is the reflected ray. Okay, so by this we can say that the ray of light which falls on the object is the incident ray, and the ray of light which is sent back by the object is called as the reflected ray. About this angle of incidence and angle of reflection we will learn in our higher classes. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ. बच्चों, होता क्या है कि प्लेन मिरर से जब आकर या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आकर जब इंसिडेंट रे टकराती है तो हम उसको एंगल कैलकुलेट करने के लिए वी ड्रॉ अ नॉर्मल विच इज द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस. परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, एंड दिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल वी कॉल इट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Then we calculate the angle of reflection, which is the angle between the normal and the angle between the reflected ray. तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई what is the incident ray and what is the reflected ray. Now kids, what happen is that it is not only a mirror which reflects the light. Instead the objects which have polished shining surfaces reflect more light than the objects which have the unpolished dull surfaces. For example, I say that a shiny mirror
it reflects light more in comparison to the objects which are like our furniture and our table and all these unpolished substances and objects. Also, the smooth surface of still water, it also acts like a mirror. Okay, now what happened कि हम image कैसे देख पाते हैं बच्चों? So we can see the objects around us because they reflect light which they receive from a luminous objects into our eyes. ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर जो भी लाइट रेज पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और वो आकर हमारी आईज में आती हैं, एंड दिस इज द रीजन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. ओके, now kids, what happen is that the polished, shiny and the smooth surfaces, they reflect light in a regular way, so they form the images of the object which is kept in front of them. On the other hand, the unpolished, dull and the rough surfaces, they form the irregular, they reflect the light in an irregular way, and thus they do not form the images. About the regular and the irregular reflection we will study in our 8th class. Now let's have a look about the images of an object. It's basically there are two type of images which are formed by an object, which can be formed by an object. So it can be a real image or it can be a virtual image. So let's have a look at the real image first. So what are the properties of the real image? रियल इमेज होता क्या है बच्चों? दीज आर दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अभी आप इमेजिन करो कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आप मिरर के सामने खड़े हो और वो जो मिरर में आप देख रहे हो ना बच्चों, वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आंखों में आ रही है. ओके, और अगर जो आप मिरर के और अपने बीच में कोई एक स्क्रीन लगा दो, आई जस्ट से कोई चार्ट पेपर लगा दो, कोई भी एक व्हाइट शीट लगा दो, तो विल यू बी एबल टू सी योर इमेज ऑन दैट व्हाइट पेपर? नो, यू विल नॉट बी एबल टू सी योर इमेज ऑन दैट व्हाइट पेपर. अब इसका उल्टा करते हैं. अब हम क्या करते हैं कि हमने एक जैसे हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं ना बच्चों, फिर हम लोग वहां पर क्या देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्टर से सामने से रेज आ रही हैं वो एक स्क्रीन पर पड़ती हैं और वहां पर वो इमेज फॉर्मेशन हो जाती है. तो वो इमेज हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. So such images which can be obtained on a screen, they are called as the real image. Okay, so अब ये बनती कैसे हैं? A real image is formed when light rays coming from an object, they meets at a point after reflection from the mirror. तो मिरर से टकराने के बाद जब वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, they converge at a point, और उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो हमारी रियल इमेजेस बनती हैं. नाउ कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स लेंसेज, दे फॉर्म द रियल इमेजेस. वी विल स्टडी अबाउट दीज मिरर्स एंड दीज लेंसेज इन अवर फर्दर स्लाइड्स. And the examples of the real images are that the image formed on a cinema screen is an example of the real image. Also the image formed by a pinhole camera, ये हमने पिन होल कैमरा वी हैव स्टडीड इन अवर 6th क्लास इन माय प्रीवियस वीडियो, और हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी थी, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पिन होल कैमरा, है ना. और उसमें हमें इमेज कैसी मिल रही थी? पिन होल कैमरा में हमें इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच वी आर लुकिंग फॉर. ओके, सो द इमेज फॉर्म बाय अ pinhole camera and the image formed on a cinema screen, they are the best example of the real images. Okay, now यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि what are the real images. Now let's have a look about the virtual images. What are the virtual images? जैसे कि आप नाम से खुद ही समझ पा रहे होंगे, these are those images which cannot be obtained on a screen. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था मिरर का. आप सुबह स्कूल जाते हुए शीशा देखकर जाते हो ना, मिरर देखकर जाते हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो आप अपने और मिरर के बीच में कोई एक ब्लैंक शीट, व्हाइट शीट रख दोगे, तो विल यू बी एबल टू सी योर रिफ्लेक्शन ऑन दैट शीट? नो, यू विल नॉट बी. तो वो जो इमेज हमारी फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द वर्चुअल इमेज. Okay, so by this, if I say that if we put a screen behind a plain mirror, we will not see anything on it. Okay, because there are no light rays behind the mirror, and there is a virtual image. That is a virtual image. It is an illusion.
Okay, because it is an illusion, so we can also call the virtual image as the unreal image. So don't ever get confused with the virtual image and the unreal image. They are the one and the same thing. Okay, and why we are not getting any this virtual image on the screen? It is because the light rays they actually do not pass through it. जब उससे पास ही नहीं होंगी तो वो मिलेंगी कहाँ पर? ओके वो मिलेंगी ही नहीं किसी एक पॉइंट पर, तो हम लोगों को वो दिखेगी ही नहीं. दैट इज द वर्चुअल इमेज. तो बच्चों आप अपार्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द वर्चुअल इमेज? मैं बताती हूँ आपको. हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन. Yes, reflection of trees, buildings, and other objects in the still water. They all are the example of virtual images. So, अभी हमने पढ़ा कि image formed by a plane mirror, it is also a virtual image. Now, let's learn more about the image formation by a plane mirror. Plane mirror में image formation कैसे होती है? So, here is the diagram of that. आपने ये imagine करा बच्चों, this is the object. O is for object. यहाँ से हमारी incident rays they are falling on the mirror M1 and M. Okay, ये यहाँ से incident rays हमारी पड़ रही हैं और ये reflect back हो रही हैं. This AC and BD, these are the reflected rays. अब ये जो reflect होंगी तो ये they are not meeting at a point. और हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई भी इमेज तभी देख पाते हैं व्हेन दे आर मीटिंग एट एनी पॉइंट. तो ये तो मीट हो ही नहीं रही है, फिर हमें दिखेगा कैसे? ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बैकवर्ड्स. हम एक बैकवर्ड्स इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं विच मीट्स एट द पॉइंट आई. ये हमारी आई इज द इमेज और यही इमेज है जो कि हमारी आंखें देख पाती हैं. दिस इज द virtual image which is forming of this object O here behind the mirror. Okay, समझ में आ गया आपको कि ये प्लेन मिरर का कैसे कैसे फंक्शन होता है, वो कैसे लाइट रेज को इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट करता है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर. तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले तो हमने पढ़ ही लिया कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर इटसेल्फ. मिरर के पीछे होती है. ऐसा नहीं होता कि वो मिरर के सामने होती है एंड यू कैन टच इट. इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. अच्छा बच्चों, आपने कभी नोटिस करा है कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज छोटी या बड़ी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना. तो ऐसा ये क्यों होता है? दिस इज अगेन वन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर दैट द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एंड इट इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप जिस पोजीशन में खड़े हो उसी में ही आप मिरर में दिखोगे. ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हो तो आप उल्टे दिखोगे मिरर में. आपकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो इन्वर्टेड नहीं होगी, इट विल बी इरेक्ट. ऐसा थोड़ा ना होता है कि मिरर में देखते हैं तो पैर ऊपर हो जाते हैं और सिर नीचे हो जाता है. ऐसे नहीं होता. तो दिस इज द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्मिंग ऑन द प्लेन मिरर. ओके, नाउ अगेन द इमेज इज वर्चुअल एज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. ये तो हमें पता ही है कि प्लेन मिरर की तो प्रॉपर्टी है. अब अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर इज व्हाट कि आप क्या करोगे बच्चों की जैसे आपके सामने मिरर रखा है, आप उससे वन हैंड डिस्टेंस पर खड़े हो जाओ तो आपको क्या लगेगा कि आपकी इमेज भी जो है जो फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर वो भी वन हैंड डिस्टेंस पर ही फॉर्म हो रही है. आप टू हैंड डिस्टेंस लेकर करो तो आपकी इमेज और भी पीछे हो जाएगी. तो दिस इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर दैट द इमेज formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. जितना डिस्टेंस आप अपने आप से मिरर का रखेंगे उतना ही इमेज अपने आप से डिस्टेंस रखेगी मिरर का. गॉट इट? नाउ बच्चों एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की जिसको कि हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. होता क्या है, व्हाट इज दिस लेटरल इन्वर्जन? इसमें क्या होता है, आपने देखा ना मिरर में कि अगर जो आप ओरिजिनली अपना राइट हैंड रेज कर रहे हैं तो मिरर में आपको कौन सा हैंड दिखाई देगा, कौन सा हैंड रेज हो रहा है? यस, लेफ्ट हैंड. और लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो मिरर में दिखेगा कि राइट हैंड रेज कर रहा है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर
इट इज कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन। बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है एम्बुलेंस का। हैव यू एवर नोटिस्ड कि एम्बुलेंस में जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो उल्टे क्यों लिखे रहते हैं, हमेशा अलग तरीके से क्यों लिखे रहते हैं? वो इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि जो एम्बुलेंस के आगे कार जा रही है या जो भी व्हीकल आगे जा रहा है, वो इंसान अगर जो अपने साइड मिरर में से देखता है तो उसको वो एम्बुलेंस, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द दिस फिनोमिना ऑफ द लेटरल इन्वर्जन, तो जब वो मिरर में देखेगा तो उसको वो सीधा सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस एंड नॉट लाइक दिस। इसलिए हमेशा एम्बुलेंस में ये उल्टा लिखा रहता है सो दैट मिरर में देखने से वो उसको एम्बुलेंस प्रॉपरली दिख पाए और जो आगे व्हीकल जा रहा है वो एम्बुलेंस को दे कैन गिव द वे टू मूव द एम्बुलेंस फॉरवर्ड। समझ में आ गया अभी आपको व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज हमने प्लेन मिरर की पढ़ी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी वर्चुअल और वी कैन से दैट इट विल बी अनरियल बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सेकेंड, देन थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड दैट द इमेज फॉर्मेशन इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। देन फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी द इमेज इज इरेक्ट, इट विल नॉट बी इन्वर्टेड, ओके, सेम साइड अप होगी उसकी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड दैट कि उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इट विल बी फॉर्म जस्ट लाइक दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट जितना पीछे होगा इमेज भी मिरर से उतने ही पीछे फॉर्म होगी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड दैट द इमेज फॉर्मेशन इज लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। सो बच्चों होता क्या है कि हर एक मिरर जो है इट इज नॉट अ स्ट्रेट प्लेन मिरर। वो हर एक मिरर्स जो है ना स्ट्रेट नहीं होते हैं जो आपके घर में लगे रहते हैं। तो कुछ मिरर्स जो होते हैं वो कर्व्ड भी होते हैं और ऐसे ही कर्व्ड मिरर्स को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। सो अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास। तो उसका कोई एक पार्ट hollow sphere होगा। Spherical mirrors they are of two types, the concave mirror and the convex mirror. Now let's read about the concave mirror first. So ये देखो अगर जो मैं इसको पूरा एक सर्कल बना दूं, एक बॉल बना दूं इसको और इसको हाफ कट कर दूं, ओके, तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा मेरा, आई कैन से इट एज द कॉन्केव मिरर, कि वो कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा, ओके। तो अब कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो इनर पार्ट की तरफ होती है इन द कॉन्केव मिरर। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट टेक्स प्लेस इन द बेंट इन सरफेस। जो बेंट इन सरफेस होता है उसमें हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब कॉन्केव मिरर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का डिफरेंस हमने पढ़ा था ना बच्चों अपनी 6th क्लास में। कन्वर्जिंग क्या हो रहा है? जो कि लाइट रेज आ रही हैं और वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। एंड व्हाट आर द डाइवर्जिंग रेज? जो कि एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में रेज जा रही हैं, ओके, सो वो डाइवर्जिंग होती हैं। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि ये दूर से या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है उसे पैरेलल बीम्स ऑफ light they will come, they will strike this mirror and then they reflect back. अब जब वो रिफ्लेक्ट होंगी then they will meet at a point. तो यहाँ पर जो ये पैरेलल बीम्स मीट करती हैं, यहाँ पर ये इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। जहाँ पर ये हमारी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट दे आर मीटिंग, इट इज नोन एज द फोकस, ओके। सो यहाँ पर मीट कर रही हैं, सो दे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। अभी आपने स्पून में भी देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पून। स्पून में देखो ना, जिस साइड से आप खाते हो द साइड यू पुट इट इनसाइड, तो वो वाली साइड होती है और एक उल्टी वाली साइड होती है। तो जो आपकी अंदर वाली साइड होती है, ओके, जहाँ पर आप अपना कोई भी सामान लेते हैं, वो मेरी हो गई कॉन्केव साइड और उसकी जो बाहर की तरफ निकली हुई साइड होती है वो मेरी हो गई कॉन्वेक्स साइड, ओके। तो समझ में आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स साइड कौन सी होती है, ओके। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज दे मीट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज द फोकस, जो कि हमने पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल बीम्स हैं दे आर मीटिंग एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज द फोकस।
Now the nature and the size of the image formed by a concave mirror depends upon the distance of the object from the mirror. अब इसमें कॉन्केव मिरर में बच्चों हमारी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, उसका डिस्टेंस कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट से, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मिरर से ऑब्जेक्ट हमने कितनी दूरी पर या कितनी पास में रखा है उस पर डिपेंड कर रहा है. प्लेन मिरर में तो हमें पता था कि वो तो सेम डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतनी ही दूर पे इमेज की डिस्टेंस होगी. बट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इट इज नॉट लाइक दैट. नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट दिस कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. अगर जो मिरर से बहुत दूर डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगी. तो देखो यहाँ पर से ऑब्जेक्ट में से मेरी ये रेज निकली जो कि इंसिडेंट रे है एंड दे स्ट्राइक एट द मिरर. ये मिरर से इन्होंने स्ट्राइक करा एंड स्ट्राइक करने के बाद बच्चों क्या करेंगी, रेज दे विल बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. और यहाँ पर जहाँ पर ये पैरेलल बीम्स मीट कर रही है तो मेरा फोकस हो गया. अब रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, वहां पर मेरी इमेज फॉर्मेशन होगी. तो अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड एट द फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर देन द इमेज इट विल बी द रियल इमेज. रियल इमेज का क्या मतलब है, दैट वी कैन ऑब्टेन दिस इमेज ऑन अ स्क्रीन and the image it will be the inverted image and the image it will be of much smaller size than the object itself. ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज की होगी. बेस्ट एग्जाम्पल है सन का. सन में आप क्या करेंगे, टेक अ कॉन्केव मिरर एंड होल्ड इट फेसिंग द सन सो दैट द सन रेज फॉल ऑन इट ऑन द मिरर. नाउ होल्ड अ शीट ऑफ पेपर in the other hand and try to get the light rays reflected by the concave mirror on the sheet of paper. Now what will you see, that you will see a bright spot on the paper sheet and what is that spot of, it is that of the sun. और अगर जो आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे ना तो थोड़ी देर में क्या होगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग. वहां पर एक होल हो जाएगा. उसमें क्या होता है, क्योंकि इट इज द कॉन्केव मिरर, इट इज द कन्वर्जिंग मिरर, तो वो सन की जो सारी रेज हैं वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे कर रहा है, तो सारी उसकी जो हीट है वो उसी पर्टिकुलर स्पॉट पर आ रही है एंड इट विल बर्न द पेपर. तो समझ में आ गया कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फार ऑफ डिस्टेंस देन व्हाट विल हैपन. नाउ लेट्स सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू क्लोज टू द मिरर. अगर जो मिरर के बहुत पास में रखा है तो कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी. तो देखो यहाँ पर ये आपका ये ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस वन ए बी. यहाँ से ये आपकी इंसिडेंट रे निकली, देन ये क्या हुआ, ये आपकी स्ट्राइक बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट बैक तो हो गई लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर मिल ही नहीं रही है. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में करा है कि हमें तो कोई भी इमेज तभी दिखेगी जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगी. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे जब तक वो मीट नहीं करती है एट पर्टिकुलर पॉइंट. अब यहाँ पर देखो ये मीट कर रही है इसने, तो यहाँ पर ये ए बी हमारी एक इमेज ये बड़ी वाली फॉर्म हो गई. ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू क्लोज टू द मिरर देन द इमेज इट विल बी वर्चुअल बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर. और वर्चुअल है तो क्या होगा बच्चों, वी कैन नॉट obtain this image on the screen. हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं. Okay, so the image it will be the virtual one, it will be erect, unlike the image which is forming when the object is too far. जब बहुत दूर रखा था तो हमारी inverted image बन रही थी, but यहाँ पर हमारी erect image बन रही है and it is much more larger than the object itself. तो ये दोनों बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर जो ऑब्जेक्ट हम पास में रखेंगे और दूर में रखेंगे तो इमेज कैसी फॉर्म होगी. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना कि एक बॉल लो, बॉल को हाफ कट कर दो तो उसमें ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है जो कि बल्ज इन होता है वो मेरा कॉन्केव पार्ट है, लेकिन जो बल्ज आउट पार्ट है वो मेरा कॉन्वेक्स पार्ट है. तो इसमें क्या होता है, ये लाइट रेज आकर इससे स्ट्राइक करेंगी एंड देन दे विल reflect back. So we can say that after reflection from convex mirror
the parallel rays of lights, they are spreading out, and when they spread out, we can say that they are diverging. Okay, so by this we can say that convex mirror, it is the diverging mirror. कॉन्केव मिरर कैसा था, वो कन्वर्जिंग मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, वो डाइवर्जिंग मिरर है. नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. A convex mirror is that spherical mirror in which the reflecting part is bulging out. It is also called as the diverging mirror, क्योंकि वो लाइट रेज को डिफरेंट पैरेलल लाइट रेज को डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है. एंड वॉट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and smaller than the object itself. तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो कॉन्वेक्स मिरर में इट विल बी द वर्चुअल इमेज ओनली, वो रियल इमेज नहीं बनाएगा. कॉन्वेक्स मिरर इट विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज ओनली एंड इट विल बी इरेक्ट एंड द image is smaller than the object itself. Okay, अब कोई confusion तो नहीं है बच्चों इसमें. Now let's have a look of the uses of spherical mirrors, that is the concave mirror and the convex mirror. So concave mirrors का use क्या है बच्चों? That these are used by the dentist to see the large image of teeth of patient. ऐसा क्यों है? ये हमने पढ़ा है ना, डेंटिस्ट कोई भी टीथ देखेगा तो बिल्कुल पास से देखेगा, तो पास से देखेगा तो क्या होगा, उसको जो टीथ दिखाई देगा पेशेंट को वो अच्छे से दिखाई देगा. तो हमने पढ़ा था कि अगर जो ऑब्जेक्ट पास में है और हम उसको मिरर से देख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसी थी, बड़ी थी, है ना. दूर जब था ऑब्जेक्ट तब छोटी इमेज थी, बट जब ऑब्जेक्ट पास में है मिरर के तो इमेज फॉर्मेशन बड़ी है. इसलिए दीज स्फेरिकल मिरर, द कॉन्केव मिरर, दीज आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट. नाउ अगेन दे आर यूज एज शेविंग मिरर्स, क्योंकि शेव करने के लिए हमें बहुत पास से देखना पड़ता है ना, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया. ओके, सो दे आर यूज एज अ शेविंग मिरर. देन दे आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि हमें दूर तक देखने के लिए चाहिए हमारी ये लाइट रेज जो है दूर तक फैल जाए और जो है हमें इजीली हमें लॉन्ग डिस्टेंस का दिख जाए. तो दे आर यूज एज द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, दीज concave mirror. Okay, now headlights जो हैं they are working on the principle of diverging, वो diverge कर रही हैं. ऐसा भी होता है, बट इसका आप यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस. एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि क्या होता है कि एक लाइटेड बल्ब जो है इट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार or in the headlights of a vehicle. Now what happen, a parallel beam of light rays is produced because of this, because when जब लाइट बल्ब वो फोकस पे जब रखा है तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी एंड वो हमें क्या करता है, फिर वो उसको पूरे में फैला देता है लाइट रेज को, एंड दिस हेल्प अस टू सी द थिंग्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द डार्कनेस ऑफ नाइट. ओके, सो इसका प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ हेडलाइट्स यू विल स्टडी लेटर ऑन. Now let's have a look about the uses of the convex mirror. So these convex mirrors, they are used to see the traffic at the rear side or back side on the road, because they form the erect and very small images of the things, and due to which we can see the large number of things which are spread over a large area on the road behind the vehicle. Okay, समझ में आ गया. Now the next use of the convex mirror is that a big convex mirrors, they are used as shop security mirrors, and the shop owner can keep an eye on the customers to look for thieves and shoplifters. Okay, kids, this is all about the spherical mirrors. We will learn more about the spherical lenses also, but in our next video. Okay, so this is all for today. Thank you for watching, and if you still have not liked, share or subscribed my channel, please do it right now. Thanks for watching. Bye bye. Take care.